Hello everyone and welcome to class 10. Today I'm going to discuss question number 11 to question number 10 from sample question paper term 1. I hope you have seen my previous videos for question number 1 to question number 10. Let's begin. So let's start with question number 11. If a square is equal to 23 upon 25, then a is. तो a square given है तो पहले a निकालते हैं. A will be root 23 upon 25. 23 is not a perfect square number, so it will become root 23 upon 5 because 25 is a perfect square number. ठीक है? In class 9th you have studied if there is one irrational number and one rational number, and if we divide, then we always get an irrational number. Quotient is always an irrational number, so this is a irrational number. Question number 12. If LCM of two numbers is 36 and SCF of the same number is 2, then x की value. ठीक है? So we have to recall the result. LCM into SCF is equal to product of two numbers, right? LCM is given as 36, SCF is given as 2. So 18 2s are 36, 2 2s are 4, x is equal to 4. That will be our answer. Next question. In triangle ABC, right angled at B, it means angle B is 90 degree. And if tan A is equal to root 3, then we have to find out the value of this expression. ठीक है? So recall करूं कि root 3 किस एंगल की वैल्यू होती है tan के. So tan A is equal to tan 60. Tan 60 is root 3. It means angle A हमारा क्या हो गया? 60 degree हो गया. Now in a triangle, if angle B is 90 and angle A is 60, so it means third angle C हमारा कितने का हो जाएगा? 30 degree by using angle sum property. ठीक है? अब हमें cos A cos C निकालना है. cos A एंगल हमारा 60 आया, यानी cos 60 cos 30 माइनस sin A कितना है? A है 60 एंड sin 30. ठीक है? सो अब हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं. सो cos 60 की वैल्यू जो है वो हमारी होती है 1/2. ठीक है? और cos 30 की वैल्यू होती है हमारी रूट 3/2. इसी तरीके से sin 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2. सो बेसिकली आप देखो दोनों एक्सप्रेशन एकदम सेम है. सो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? 0. सो 0 इज द करेक्ट आंसर. If question number 14, if the angles of a triangle are in the ratio 1:1:2 respectively, the largest angle being the angle C, then the value of sec A upon cosec B minus tan A upon cot B is. ठीक है? तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि एंगल्स जो है, लेट अस अज्यूम एंगल आर x and 2x. ये एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं. 2 + 3 4x is equal to 180. So x is equal to क्या हो गया? 4 4s are 16, 4 5s are 20. इसका मतलब जो हमारे एंगल्स हैं वो 45, 45 और 90 डिग्री है. ठीक है? इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट? अब राइट एंगल ट्रायंगल में जो है वो हमें क्या क्या वैल्यूज निकालनी है? secant A upon cosec B minus tan. बेसिकली तो ये सारे 45 45 एंड cot भी है 45. ये भी है हमारा sec भी जो है वो हमारा 45 है. cosec भी जो है वो हमारा 45 है. ठीक है? ये भी हमारा 45 है. तो sec 45 है हमारा √2 and cosec 45 is also √2 and tan 45 हमारा 1 है. माइनस का साइन है. tan 45 हमारा 1 होता है और cot 45 भी हमारा 1 होता है. ठीक है? सो ये हमारा बेसिकली 1 - 1 यानी कि यहाँ पर भी हमारा 0 आंसर आएगा. सो दिस इज अगेन 0.
Question number 15. The number of revolution made by a circular wheel of radius 0.7 meter in rolling a distance of 176 meter is. So, इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पर हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने होते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सरकमफ्रेंस, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस हमारी है 176 और सरकमफ्रेंस आप चाहो तो अलग से निकाल लो। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, पाई है हमारा 22/7 और आर गिवन है 0.7। एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है इस टाइप के क्वेश्चंस में, दैट यूनिट शुड बी सेम। जैसे यहाँ पर तो सेम ही है, ये भी मीटर में है, रेडियस भी मीटर में है, डिस्टेंस भी मीटर में है, बट समटाइम्स इफ दे आर डिफरेंट देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेम यूनिट, राइट। ये हो गया हमारा 0.1, सो आंसर आया है 4.4, ठीक है। तो 4.4 यहाँ पे रखा, पॉइंट हटाया, 0 लगाया और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स से और 0 साथ में आ जाएगा। सो बेसिकली 40 रिवॉल्यूशन में 176 मीटर डिस्टेंस कवर होगी, ठीक है। Question number 16. If ABC is such that AB, BC, CA is given and it is given that this triangle ABC is similar to triangle DEF and EF is equal to 4, then perimeter of DEF हमें find out करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ट्रायंगल का, कि इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC होगा, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, ये जो है इनके साइड के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि हमें EF जो है, EF के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, BC। सो BC और EF को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, BC अपॉन EF, जिस ट्रायंगल की हमें दोनों साइड पता हो, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ ABC तो हमें पता है, ऐड कर लेते हैं, 3 + 2 5, 5 + 2.5 7.5, तो ये हो गया 7.5। पेरीमीटर हमें DEF का फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। फिर है हमारा BC कितना था, BC इज गिवन एज 2 एंड EF इज गिवन एज 4, ठीक है। सो 2 2s are 4, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2s are 10, 7 4 2s are 14 + 1 15। सो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ DEF इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 15B इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन. In triangle, in figure, if DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, AD is 3, BD is 4, BC is 14, then DE is equal to, ये वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या नोटिस करो, अगर हम ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूफ कर दे ADE के, ठीक है, या ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, तो कैसे कर सकते हैं, एंगल A दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ADE में भी एंगल A है, ABC में भी एंगल A है, दीज टू साइड्स आर पैरेलल साइड्स, सो ये वाले एंगल हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो एंगल D जो है एंगल B के इक्वल हो गया। सो बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होता है, तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू, हमें निकालना क्या क्या है, DE और BC, तो हम वही रेशियो खाली लिख रहे हैं, DE अपॉन BC, ठीक है। अब AD गिवन है, AD है 3, एक्चुअली हमें AB नहीं गिवन है, हमें DE और AB अलग अलग पता है, तो वी कैन ऐड देम, ठीक है। तो वो AB की हो जाएगी लेंथ इज इक्वल टू DE हमें फाइंड आउट करना है, और BC जो है वो कितना गिवन है, BC इज 14, सो 7 2s are 14 and 3 2s are 6, so DE is equal to 6 centimeter, so this B is our correct answer. Next question.
if 4 tan beta is equal to 3, then we have to find out the value of this expression. ठीक है, 4 sin beta minus 3 cos beta upon 4 sin beta plus 3 cos beta. तो देखो, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो. या तो ये वाली जो वैल्यू गिवन है इसको हमने लिख लिया कि tan बीटा इज इक्वल टू 3/4, तो उससे आप साइन बीटा कॉस बीटा की वैल्यू अलग अलग निकाल लो और सब इसमें पुट कर दो. या फिर अगर एक चीज और आप ऑब्जर्व कर सको, तो यहां से इफ वी टेक कॉस बीटा कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो कॉस बीटा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बेसिकली, या आप ये समझ लो कि कॉस बीटा से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. ठीक है, आप अदर वर्ड में ऐसे समझ लो कि कॉस बीटा से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया. तो ये क्या हो गया, ये टेन बीटा बन गया और कॉस बीटा कैंसिल हो गया. इसी तरीके से नीचे वाला टेन बीटा बन गया और यहाँ पर हो गया 3. ठीक है, अब 4 tan बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 3, तो ये हो गया 3 माइनस 3 और यहाँ पर हो गया 3 प्लस 3, तो 0/6. बेसिकली आंसर क्या आ गया, 0. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, कमिंग ऑन द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. One equation of a pair of dependent linear equation is this. The second equation can be. तो डिपेंडेंट इक्वेशन का मतलब है जो हमारी इक्वेशन कंसाइड करती है वो वाली. ठीक है, तो अगर एक इक्वेशन आपको गिवन है, दूसरी फाइंड आउट करनी है, तो बेसिकली हम अगर इस इक्वेशन में किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सेकंड इक्वेशन डिपेंडेंट इक्वेशन मिल जाती है. राइट, तो यहाँ पर आप नोटिस करो कि देखो यहाँ पर 10 आया है, 14 है और 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है होगा, तो ये वाले नंबर्स आए. राइट, तो यहाँ एक चीज आप और ऑब्जर्व करो कि x का जो साइन है वो नेगेटिव है और y का पॉजिटिव है, यानी कि दोनों x एंड y के अपोजिट साइन है. तो ए ऑप्शन में दोनों पॉजिटिव साइन है, बी ऑप्शन में दोनों नेगेटिव साइन है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कैंसिल आउट हो गए. सी ऑप्शन में यहाँ पर नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये तो मैच कर रहा है. बट एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर कांस्टेंट जो है इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है. अगर आप इस कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हो तो इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा. सो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट ऑप्शन. कमिंग टू ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पर अब x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव दिया है, तो अगर आप ये एज्यूम करो कि इसको -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये -10, ये +10 हो जाएगा, ये -14 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा. ठीक है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A letter of English alphabet is chosen at random. What is the probability that it is the letter of the word mathematics? तो यहाँ पर आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि टोटल अल्फाबेट्स जो है वो कितने होते हैं. टोटल अल्फाबेट होते हैं हमारे 26. अब ये कह रहे हैं मैथमेटिक्स, अगर अल्फाबेट में से हम एक लेटर निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो मैथमेटिक्स जिन वर्ड्स जिन लेटर से बना है उनमें से कोई हो. ठीक है, तो पहले काउंट कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या क्या आपके लेटर्स यूज हुए हैं. बट एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि यू विल नॉट कंसीडर द रिपीटेड लेटर्स. फॉर एग्जाम्पल MATHE, अब ये M रिपीट हो गया, फिर से A रिपीट हो गया, फिर से T रिपीट हो गया, फिर से. ठीक है, तो हम इन 3 लेटर्स को नहीं काउंट करेंगे. अब हम देखते हैं और C है और S है, तो अब टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमारे फेवरेबल जो लेटर्स है वो है 8. राइट, हम जो रिपीटेड लेटर्स है उनको कंसीडर नहीं करेंगे. तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेटर विल बी 8/26. 8/26, तो ये हो गया 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6. तो यहाँ पर 4/13, yes 4/13 इज अ ऑप्शन. अगर आपने ये लॉजिक नहीं ध्यान रखा और आपने इन सारे लेटर्स को काउंट कर लिया तो जो कि 11 है, और 11/26 भी हमारा एक ऑप्शन गिवन है, बट दैट इज इनकरेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो रिपीट हो रहे हैं लेटर्स दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड. Right, so we have discussed 20 questions, 11 to question number 20. I hope
आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस सेक्शन बी, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. टेक केयर. थैंक यू.